it's almost time. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. All praise is due to Allah, the most merciful, the most wise, who grants us life, health, and the blessed opportunity to witness another sacred month of Ramadan. Dear, before starting, I would like to recite a small dua. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawl, which means, my Lord, open my heart and make my task easy for me. Loosen the knot in my tongue so that they may understand my speech. या अल्लाह मेरे दिल को खोल दे, मेरे काम मेरे लिए आसान कर दे, मेरी जुबान की गिरा खोल दे ताकि लोग मेरी बात को समझ सकें. So, dear respected doctors, dietitians, panelists, students, and all our wonderful participants joining us today, a very warm welcome to each one of you. रमजान रमजान क्या सिर्फ भूखे भूखे प्यासे रहने का नाम है कि सुबह से कुछ नहीं खाना है, पीना है एंड इफ्तार करना है, सहरी करना? इज इट? नो, इट इज अ मंथ ऑफ डिसिप्लिन, बैलेंस, healing, patience, and self reflection. And that Islam beautifully teaches us moderation, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, limit. And science supports the same truth. However, लेकिन देखा गया है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज रहते हैं, डर से रोज़ा नहीं रखते हैं, या किसी के पास मिस इन्फॉर्मेशन रहता है, या तो रोज़ा रखने के बाद बहुत ज़्यादा है, या फिर शुगर फ्लक्चुएशन होता है. और कोई पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि उनके लिए फास्टिंग करना सेफ होगा भी या नहीं. सो इसीलिए ये वेबिनार आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अटेंड करना. टूडेज ये सेशन जो डिज़ाइन किया गया है, इट्स टू ब्रीच फेथ विथ साइंस, to help us fast safely, mindfully, and confidently. Whether you are a healthy individual, a student, a patient, or a caregiver. So, today we will be discussing pre-Ramadan, during Ramadan, and post-Ramadan preparation, metabolic and physiological changes during fasting. Fasting के दौरान हमारे body में जो changes होते हैं उसको कैसे deal कर सकते हैं. And we will also have a live Q&A session because your doubts matter. So, without a delay, I deeply honored to moderate today's session with such esteemed experts who bring together years of clinical experience, nutritional wisdom, and compassion for patient care. So, I would like to introduce today's chairperson, who is my mentor as well, Mr. Shaumindu Ghosh, to address the speaker. Just a second. My screen is shared, right? It is sharing. Yeah, now it is shared. Okay, thank you. So, Mr. Shaumindu Ghosh, he is a practicing dietitian, senior dietitian of 18 years of experience in this field. Right now, he is a founder and director of Cognize Nutrition, which is a unique learning platform for all the budding nutritionists. And he has his chamber as well attached with a psychologist, psychiatrist. He has conducted a lot of webinars, seminars, participated as a speaker in various workshops and seminar as well. So further ado, I would like to invite Mr. Shaumindu Ghosh to address and invite and introduce our speakers for today's session. Thank you so much. Thank you, Fatima, for a nice introduction and of the session, start of the session. So I really want to thank all our esteemed speakers. They have given their valuable time. So it is all about elevating our mind and body with, as you already mentioned, हमारे फास्टिंग के दौरान हम लोग बहुत सारा हम लोगों को मिसकॉन्सेप्शंस रहते हैं. बहुत लोग ऐसे हैं अपना जो रेगुलर मेडिसिन को ऑल्टर कर देते, बंद कर देते हैं, नहीं लेते टाइम पे. और खाना जो हम लोग सुनेंगे ऑल सभी के लिए, सो द फूड कैन हील, मगर फूड कैन ऑल्सो क्रिएट मेनी प्रॉब्लम, गट डिसबायोसिस, मेनी डिजीज एंड मेटाबॉलिक प्रॉब्लम. लगी सभी घरों में थायराइड का प्रॉब्लम है, डायबिटीज का शिकायत है, हाइपरटेंशन है, उसके साथ बहुत लोगों को गैस्ट्रिक्स इशू है. सो अगर सही वे में ये जो पुराना फास्टिंग का तरीका है, ये मॉडर्न साइंस अगेन ब्रिंगिंग दिस थॉट्स ऑफ इंटरमीडिएट फास्टिंग. सो you can control your blood sugar, cholesterol, blood pressure
लेथर्जी, फैटिग, एवरीथिंग कैन बी कंट्रोल्ड अगर आप सही तरीके से फास्टिंग करते हो, सही तरीके से प्री रमजान प्रिपरेशन रहते हो। आपका स्लीप बहुत जरूरी है, आपका हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, जैसे पानी पीना। कोई अगर सोचते हैं हम कोक पियेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे, बहुत ज्यादा कॉफी पियेंगे, वो भी तो लिक्विड है। नो, ऐसा नहीं है। क्या पीना है, क्या खाना है, किस वक्त क्या लेना है, सभी आज डिस्कस होगा। सो आई वुड लाइक टू टेक द प्रिविलेज टू इंट्रोड्यूस फर्स्ट स्पीकर, that is Dr. Mohsin Aslam sir. He is attached with a very renowned hospital, Asian Institute of Gastroenterology, Hyderabad. He is the executive member of RSSDI, also Telangana chapter, Joint Secretary of Indian Society of Hypertension, Executive Committee member, API Hyderabad. And he is having a many years of experience, many achievements. He has received many awards in his name, and he has given many talks, many health talks. So we also have our next speaker, Dr. Zubeta ma'am. Zubeta ma'am is very close to me. He's one of the famous name in the dietitian fraternity. Can you just change the next slide, please? Yeah. So, so ma'am has a many years of clinical experience, more than 2 decades of experience. She is PhD nutrition. She is also gold medalist in BHSC. So she has presented many papers in both national and international. Her area of interest is metabolic lifestyle disorder. So she will be the right person to discuss about this type 2 diabetes, fatty liver, MSLD, and आपका जो भी इंफ्लेमेटरी प्रॉब्लम, सभी वजह से हम लोग वी आर ऑल इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न कल्चर। सो हमारा फूड में, सारे फूड में इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा है। एंड our most young speaker is Shumitra Dhar, the next speaker, and she will just introduce our topic. She is having 12, 13 years of experience. She has worked in 2, 3 good, very good hospitals. She is the faculty member of the Cognized Nutrition. So she has worked in the critical care, burn, OPD, diabetes OPD, and now she is attached in gastro clinic also. So renowned gastroenterologist of Kolkata, Dr. Ashokananda Konar. She is having a great experience. So with all this brief introduction, I would like to move to the main topic. So Fatma, you can stop sharing the screen, and आप लोगों सभी लोगों को बोलते, जितना टाइम आपके पास है, आप लोग चैट बॉक्स में यू कैन keep on posting your questions, because after the two small session 10-15 minutes, Dr. Mohsin sir is with us to answer all your questions. आप लोगों को बहुत क्वेश्चंस है मेडिसिन को लेके, ये सब लेके आप लोगों को क्वेश्चंस है। सो सुमित्रा, यू कैन शेयर योर स्क्रीन, एंड प्री रमजान प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए, जस्ट अ ब्रीफ करो, then we will introduce ma'am about the dietary things. Thank you so much. Yeah, it is perfectly visible now. You just share the, sorry, unmute yourself. Then just go back or just stop sharing. Just unmute first. Yes, Yeah. it's perfect. You are Okay. unmuted. Okay. It is okay. Good evening, everyone. I'm dietitian Shumitra Dhar. Thank you, Shomendu sir, for the lovely introduction. And special thanks to this organization for choosing me on this auspicious occasion. And I'm really very blessed to be a part of this program. Today, I would like to say about pre-Ramadan preparation optimizes health and fasting enhances the metabolic balance. So, Ramadan is more than fasting. Ramadan is more than fasting. So Ramadan सिर्फ एक fasting नहीं है. It is a sacred pause where faith, culture and nourishment come together. For a quiet suhoor morning, तो सुहूर के जो शांत मॉर्निंग होता है, to share iftar at sunset. तो इफ्तार का जो चहल पहल सनसेट होता है, every meal carries tradition, gratitude and love. जिसमें सारा जो मील होता है वो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, हमारे ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करता है और एक दूसरे से प्यार से बंधा हुआ है. The Ramjan diet reflects a culture that teaches balance, patience and togetherness. तो रमजान डाइट जो संतुलन बजाय रखता है, पेशेंस एंड टुगेदरनेस,
reminding us that feeding the soul is just as important as feeding the body. So Ramzan is the 9th month of Islamic lunar calendar. It's begin with the sighting of the new moon and lasts for 29 to 30 days. तो जो 29 से 30 दिन तक रहता है. तो शुरू करने से पहले हम मैम को थैंक्स बोलेंगे, डॉक्टर को भी थैंक्स बोलेंगे. हमारी जो जुबैदा मैम है, डॉक्टर जुबैदा मैम, तो वो आपको रमजान के डाइट के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगी, कैसे पानी पीना है, कैसे डाइट लेना है, क्योंकि क्रिटिकल डिजीज में हर डाइट सेम नहीं होता पेशेंट का. ये डाइट पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है. तो मैम उसके बारे में और बताएंगी, एक्सरसाइज के बारे में बताएंगी, लेकिन मैं जो बताऊंगी वो इम्पैक्ट थोड़ा डिफरेंट है कि हम तो रमजान करते हैं, इस रमजान में शरीर के अंदर क्या क्या चेंजेस होता है, इस शरीर कितना और ज्यादा स्ट्रांग होता है, कितना और इम्यूनिटी बढ़ता है. और ये रमजान जब खत्म होता है तो आप फील करेंगे आप पहले से और ज्यादा, मतलब अंदर से खुद को और ज्यादा एक्टिव और ज्यादा इम्यून कैसे रख सकते हैं. द इम्पैक्ट ऑफ फास्टिंग ऑन आवर बॉडी ड्यूरिंग रमजान. So metabolism and benefits of 30 days of fasting in Ramadan. तो रमजान के जो पहले 1-2 दिन होता है, उस समय आप सहरी से इफ्तार को लेके बहुत टाइम आप खाली पेट रहते हैं, जिसको हम ड्राई फास्टिंग बोलते हैं. तो इसमें आप खाना भी नहीं ले सकते, आप पानी भी नहीं ले सकते. तो ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप करता है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप करता है, और बहुत सारा वीकनेस भी फील होता है. किसी लोगों को हेडेक होता है बहुत ज्यादा, किसी को बहुत ज्यादा भूख लगता है, जिसको हम हंगर पैंग्स बोलते हैं. तो ये 1-2 दिन में होता है. जब हम डे 3 to 7 में आ जाते, एक हफ्ता जब होता है, तब डाइजेस्टिव सिस्टम पहले से और बेहतर होने लगता है, बॉडी अपना टॉक्सिन खुद ही क्लीन करने लगता है, और इम्यूनिटी और ज्यादा बनने लगता है. लेकिन एक हार्मोन है जो थोड़ा सा परेशान करता है, दैट इज ग्रेलिन. ग्रेलिन है हमारा हंगर हार्मोन. तो ये ग्रेलिन क्या करता है, ग्रेलिन ना हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जैसे हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, जैसे हमारा मिड मॉर्निंग हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, उस समय को ये ग्रेलिन बहुत ज्यादा निकलता है. तो अभी जब रमजान में फास्टिंग में है, तो बॉडी में बहुत से टाइम हम लोग ड्राई फास्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम को ना ग्रेलिन थोड़ा सा हंगर पैंग्स देता है, लाइक 8 to 15 डेज. अब रमजान का आधा महीना हो गया, तो अभी हीलिंग प्रोसेस और ज्यादा होने लगा. अब बॉडी के जो ओल्ड इंजरीज है, जो इन्फ्लेम्ड सेल्स है, वो सारा टॉक्सिन वगैरह बॉडी से निकल जा रहा है. अब ग्रेलिन भी पहले से बढ़िया काम कर रहा है. अब सिर्फ वो सहरी के टाइम और इफ्तार के टाइम ही हंगर पैंग्स दे रहा है, तो बॉडी के साथ वो एडजस्ट होने लगा है. नाउ डे 16 to 20 अभी और ज्यादा बॉडी टॉक्सिन को रिमूव कर रहा है. अभी स्ट्रेस लेवल भी कंट्रोल हो रहा है. कि तो पहले क्या होता था, जब रमजान हम शुरू करते थे तो बहुत टाइम भूखे रहते थे, तब कॉर्टिसोल जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है, वो भी ना बहुत अप डाउन करता था. वो सुबह को कम होने लगता था, शाम के टाइम से बढ़ने लगता था. तो इससे ना स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता था. तो जितना हम रमजान के आगे जाते हैं, जितना हम रोजा के एंड के साइड में जाते हैं, तब कॉर्टिसोल भी एडजस्ट होने लगता है. डे 20 to 30 उस टाइम को आप देखेंगे कि आप अपना स्ट्रेस खुद थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, इमोशनल बैलेंस भी मेंटेन कर सकते हैं. वो आपका मेमोरी भी इंप्रूव करेगा, आपका कंसंट्रेशन भी इंप्रूव करेगा. तो फास्टिंग ड्यूरिंग रमजान एंड इट्स इम्यून इफेक्ट, तो ये तो 29 to 30 डेज तक रहता है, जिसको हम ड्राई फास्टिंग बोले. आप खाना भी नहीं ले सकते, आप पानी भी नहीं ले सकते, सहरी से लेके इफ्तार तक. तो यहाँ पे ना बहुत सारे स्टडीज है कि कैसा खाना लेना चाहिए रमजान में. तो अभी कीटो फ्रेंडली जो डाइट है, जिसमें हम लो कार्बोहाइड्रेट रखेंगे, हाई प्रोटीन रखेंगे, फाइबर को गुड फाइबर अमाउंट में रखेंगे, प्रोबायोटिक्स इंक्लूड करेंगे, जिसमें जो फैट है गुड फैट, सीड्स एंड नट्स हम इंकॉर्पोरेट करेंगे, बॉडी को हाइड्रेटेड रखेंगे और मॉडरेट एक्सरसाइज करेंगे. उसका एक एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट है, उससे आपका इम्यून सिस्टम और ज्यादा एक्टिव होता है. तो हम लोग क्या क्या नहीं करेंगे, हम ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत से टाइम खाली पेट रहने से दिमाग में ये चलता है कि जब भी खाना है तो बहुत ज्यादा खाना है. और सुबह से मतलब भूखे रहने के बाद जब इफ्तार होता है, तब हम खजूर और पानी पी के डायरेक्टली हम पकोड़े या सिंगारा ऐसे कोई फ्राइड फूड के ऊपर जंप करते हैं. तो उसके बाद जो भी खाते हैं वो बहुत मीठा चीज खाते हैं, शुगरी फूड खाते हैं, उससे ना क्रेविंग्स और ज्यादा बढ़ जाता है, ओवर ईटिंग का चांसेस बहुत ज्यादा होता है. तो व्हाट यू ईट बिफोर एंड आफ्टर योर फास्ट,
is going to make or break your success. तो फास्टिंग में क्या क्या हमारे बॉडी में इंप्रूव होता है? फास्टिंग जितना आप अच्छे से रखेंगे, जितना हेल्दी वे में करेंगे, उतना बॉडी का जो साइटोकाइंस है वो और कम होता जाएगा। उसका मतलब है इन्फ्लामेशन कम होना। अभी ये बात हम लोग बहुत सुन चुके हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज फेसबुक इंस्टा यहाँ पे लिख रहे हैं कि हम लोग एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट से अपना वजन कम कर रहे हैं, उससे एजिंग एंटी एजिंग हो रहा है, उससे एनर्जी बहुत ज्यादा आता है, शरीर अच्छा रहता है। तो अल्लाह ने ये मौका दिया है कि साइटोकाइंस ऐसे ही कम हो जा रहे हैं। तो रमजान में जो रोजा रखने से साइटोकाइंस लेवल या इन्फ्लामेशन पहले से कम होता है, मैक्रोफेजेस बॉडी में बढ़ जाते हैं। तो कोई भी वायरस हो, बैक्टीरिया हो, वो सारा अपने मैक्रोफेजेस उसको एनगल्फ कर लेते हैं, तो आपका इम्यूनिटी पहले से और बढ़िया हो जाएगा। जो माइक्रोबियम ग्रोथ है वो भी बढ़ेगा। अभी पेट का प्रॉब्लम, गैस्ट्रो का प्रॉब्लम, इट्स वेरी वेरी कॉमन। सबको ये गैस, एसिडिटी, नहीं तो डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ये सारा प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि हमारा जो गट माइक्रोबियम है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, उसमें बैड बैक्टीरियल ग्रोथ ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि 70% बैक्टीरिया इज लोकेटेड इन आवर लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस रमजान में हमारे गुड बैक्टीरिया ग्रोथ और बढ़ जाते हैं। रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस, तो स्ट्रेस सारे फील्ड में है। एक बच्चे को, स्कूल गोइंग बच्चा हो, कॉलेज गोइंग बच्चा हो, एक हाउसवाइफ हो, या कोई काम करता है ऑफिस में या फिर कोई दुकान में काम करता है, स्ट्रेस लेवल सबका ही हाई है। और मैंने जो कॉर्टिसोल के बारे में बोला, स्टार्टिंग ऑफ रमजान ये कॉर्टिसोल लेवल बहुत हाई रहता है, तो स्ट्रेस बढ़ता है। लेकिन जितना रमजान प्रोसीड करता है उतना आप देखेंगे कि यू कैन फाइट अगेंस्ट योर स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, तो फ्री रेडिकल के बारे में तो हमने सुना होगा। ये फ्री रेडिकल्स जितने हैं जो हमारे हेल्दी सेल्स को और डैमेज कर रहे हैं इन आवर कैंसर डिजीज, इन केस ऑफ एजिंग प्रोसेस, तो ये फ्री रेडिकल्स को भी ये कम करता है। जितना आप फास्टिंग अच्छे से करेंगे ये आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कम करेगा। ऑटोफेजी का मतलब है ये सारा चीज जो खराब चीज है, ओल्ड सेल हो, डैमेज पार्टिकल्स हो, सब कुछ ये पहले से कम कर देता है। और ग्रेलिन भी अभी बिल्कुल अच्छे से काम करता है। ये सिर्फ हमारे इफ्तार में और हमारे सहरी में ही सिक्रेट होता है। तो आपका जो हंगर पैंग्स पहले हो रहा था 1-2 दिन में, फिर वो एकदम कंट्रोल में आ जाता है। तो ओवरऑल ये क्या क्या चीजें इंप्रूव करेगा? आपका डायबिटीज, आपका इम्यूनिटी, ये कैंसर से भी प्रिवेंट करेगा, रेगुलेट सेल मेटाबॉलिज्म, प्रमोट योर वेट लॉस। जो हमने बोला अगर आप अच्छे से हेल्दी वे में करेंगे दैट विल प्रमोट योर वेट लॉस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिडक्शन, बूस्ट योर ब्रेन फंक्शन एंड इंप्रूव योर हार्ट फंक्शन। तो प्री रमजान प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब एग्जाम देने जाते हैं तो पढ़ाई करना जैसे इंपॉर्टेंट है, वैसे ही जब रोजा रखने जाते हैं तो प्री प्रिपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एडजस्टिंग योर डाइट। तो यहाँ पे हम 4 पॉइंट के बारे में बोलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज रिड्यूस योर कैफीन ग्रेजुअली, सेकंड इज प्लान योर मील, थर्ड इज कंसल्ट योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड फोर्थ वन इज एडजस्ट योर स्लीप एंड मील। Now reduce your caffeine gradually। अब कैफीन कम करना क्यों इतना जरूरी है? आप देखेंगे कि अगर रमजान शुरू होने से पहले ही आप टी, कॉफी, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, जो सोडा हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, ये सारा अगर आप कम करना शुरू करेंगे तो रमजान के टाइम आपका हेडेक, वीकनेस पहले से और कम होगा। क्योंकि जो हम हाइड्रेशन का बात कर रहे हैं, हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिहाइड्रेशन बहुत खराब है क्योंकि ये एक ड्राई फास्टिंग है, तो आप पानी नहीं पी सकते सहरी से लेके इफ्तार तक। तो इस समय को अगर आप कैफीन को कंट्रोल में लाएंगे, हम पूरा बंद करने को नहीं बोल रहे, आप अगर दिन में 4 कप पीते हैं उसको 1 कप में लाइए, क्योंकि कैफीन का एक डायूरेटिक इफेक्ट है जो क्या करता है, जो पानी को बॉडी से खींच के निकाल देता है। यूरिन ज्यादा होता है, तो अगर आप बार बार चाय और कॉफी पिएंगे, ज्यादा यूरिन जाएंगे तो डिहाइड्रेशन होने का चांसेस है। तो इट्स बेटर टू टेक टी, कॉफी, कैफिनेटेड प्रोडक्ट में वेरी वेरी मॉडरेट अमाउंट। सेकेंड वन इज प्लान योर मील। तो पहले से अगर हम प्लान करेंगे कि ये खाना खाना है या ये रेसिपीज हम बनाएंगे, तो एक शॉपिंग लिस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट ओवर ईटिंग। क्योंकि मैंने जो बोला कि आप बहुत देर तक खाली पेट में है, जितना खाली पेट रहेंगे ना उतना लगेगा जब हम खाने बैठेंगे तो एक साथ बहुत सारा खा लेंगे। तो एक साथ जब आप फ्राइड फूड लेना स्टार्ट करेंगे, जूस लेना स्टार्ट करेंगे, लस्सी लेना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जब आप मेन खाना डिनर लेंगे
उस टाइम को देखेंगे, अगर कैलोरी हम काउंट करें तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है। तो शुगरी फूड, सॉल्टी फूड, कैफिनेटेड फूड, ये सारा आपको अभी अवॉइड करना पड़ेगा। तो आप किसके ऊपर स्ट्रेस देंगे? आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के ऊपर स्ट्रेस देंगे, प्रोटीन के ऊपर स्ट्रेस देंगे, हेल्दी फैट्स एंड नट्स के ऊपर स्ट्रेस देंगे, फाइबर, हेल्दी फाइबर चूज करेंगे, प्रोबायोटिक्स लेंगे, हाइड्रेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पानी पिएंगे। तो ये सारा अगर आप करेंगे तो जो हमने बोला कि हेल्दी चॉइसेस अगर आप मेंटेन करेंगे वर्सेस अनहेल्दी चॉइस को आप अवॉइड करेंगे, तो पूरा रमजान बहुत अच्छे से आप अल्लाह का इबादत भी करेंगे और आपका शरीर और इम्यूनिटी भी पहले से बहुत बढ़िया होगा। Now consult the healthcare provider. The third point. So in case of any chronic condition like diabetes, kidney problem, pregnancy, or अगर any critical condition like अदर अगर कोई प्रॉब्लम हो, हाइपरटेंशन, तो आप प्री रमजान एक बार डॉक्टर दिखा लीजिए, ड्यूरिंग रमजान एंड पोस्ट रमजान। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेफ फास्टिंग। एंड द लास्ट वन इज एडजस्ट योर स्लीप एंड मील्स। अगर नींद ठीक तरह से नहीं हुआ तो डाइजेशन भी ठीक तरह से नहीं होगा, बार बार भूख लगना शुरू होगा, क्योंकि एक तो आपको सहरी में जल्दी उठना पड़ता है, तो वहां पे स्लीप का थोड़ा गैप हो जाता है। तो उससे क्या होता है, जितना कम स्लीप करेंगे उतना हमारा जो ग्रेलिन है वो ज्यादा निकलेगा, मतलब हंगर पैंग्स और ज्यादा बढ़ेंगे और आपको बारी बारी भूख लगना शुरू हो जाएगा। इंसुलिन सेंसिटिविटी भी आपका पहले से लो होता जाएगा और आपको शुगर का क्रेविंग होगा। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमको मीठा खाने का क्यों दिल कर रहा है, क्योंकि आपका नींद पूरा नहीं हुआ, और जितना नींद पूरा नहीं होगा उतना आपका कॉर्टिसोल बढ़ेगा, उतना आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, तो उतना ज्यादा आप अच्छे से पूरा ये फास्ट नहीं निभा पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम थोड़ा पहले से ही उठने का कोशिश करेंगे। जब आप प्री रमजान में हैं तभी आप जल्दी सुबह को उठेंगे और जल्दी आप ब्रेकफास्ट लेने का कोशिश करेंगे, क्योंकि जब भी आप जल्दी ब्रेकफास्ट लेंगे तो सहरी लेने का एक आदत हो जाएगा। तो इसी हिसाब से आप इसको एडजस्ट या ऑल्टर कर सकते हैं। तो नरिश योर बॉडी, ऑनर योर फास्ट। थैंक यू सो मच। Thank you, Shimitra ji, and it is a very crisp session, very nice session. You have set a context. So now we have Zubeda ma'am. She will give a insight because she is having a long year of experience handling the patients of different metabolic conditions. So Shubeda, by the time Zubeda ma'am share your screen, so just for interaction, मोहसिन सर हमारे साथ है, एक क्वेश्चन से ही पूछते हैं, ये किडनी पेशेंट के लिए फास्ट रखना पॉसिबल होता है? अगर सीकेडी है तो ही और शी कैन डू द फास्टिंग रख सकता है, या आपके हिसाब से मेडिकल ग्राउंड के हिसाब से क्या है? सीकेडी पेशेंट अगर अर्ली स्टेज में है, स्टेज 1 स्टेज 2 एंड द डिजीज इज स्टेबल, यस फास्टिंग रख सकते हैं। बट प्री रमज़ान एक सेरम क्रिएटिनिन और सेरम इलेक्ट्रोलाइट्स मेजर करना चाहिए, और एक मिड रमज़ान में एंड देन एक इमीडिएटली पोस्ट रमज़ान। बिकॉज क्या होता है कि जैसा ड्राई फास्टिंग बताया गया है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो वाटर इनटेक हमको मेंटेन करना चाहिए एंड रेगुलर मॉनिटरिंग के साथ स्टेज 1 स्टेज 2 रख सकते हैं द डिजीज इज स्टेबल। बट एडवांस डिजीज स्टेज 3 स्टेज 4 जहाँ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, डिहाइड्रेशन का चांस बढ़ जाता है, जहाँ हम अगर ओवर फ्लूइड लेने से फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा या डिहाइड्रेशन होने से एक एक्यूट किडनी इंजरी हो जाएगा, वहाँ हमको अवॉइड करना होता है। और डायलिसिस पेशेंट में तो स्ट्रिक्टली मनाही है, स्ट्रिक्टली मना है डायलिसिस पेशेंट को। सो शायद सर आपका, रेहमान सर आपका आंसर मिल गया। सो फिर से एक बार हम लोग जुबेदा मैम के पास आते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है मैम विल से, बट बिफोर दैट इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, अगर सब एवरीबडी इज कंफर्टेबल इन इंग्लिश, so ma'am will come continue both English and Hindi or mixed. So again we will come to sir. So ma'am, it's over to you. Okay, so good evening, Assalamu alaikum. I hope I'm audible to everybody. Yes, yes.
Yeah. Yes, ma'am. So we have had Sumitra who's explained about what happens in Ramadan and how one person can prepare for Ramadan. और हमें सबको पता है कि रमजान में फेथ, आपका जो एक विश्वास है, जो आपका एक आप इस्लामिक जो प्रैक्टिस फॉलो करते हो, उसका मेटाबॉलिक हेल्थ के साथ में क्या संबंध है। आज बीइंग अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हम ये बताएंगे कि साइंटिफिकली इसमें क्या अच्छा है और कैसे हम अपने आप को और अच्छा कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड। सो रमदान में जैसे हमने सुना था कि सिर्फ भूखा रहना नहीं होता है, ये जो आपके 5 पिलर्स है इस्लाम में, यहाँ पे शहादा, सलाह, ज़कात, फास्टिंग और हज है, जिससे हम डिसिप्लिन और अपने आप को एक हेल्दी वे से रख सकते हैं। और ये मुस्लिम जो जहाँ पर भी है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एनी कंट्री में, सब लोग इसी को फॉलो करते हैं। और रमजान में एक बहुत ही बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन है, हर कोई ये समझता है कि ये एक हमारे लिए लाइसेंस है, जो जो भी खाना है मुझे, मैं पूरा साल में राह देखता हूँ रमजान का महीना आएगा तो मैं तला हुआ, मीठा, शरबत, आइसक्रीम, मिठाइयाँ जबर से खाऊंगा, जितना मर्जी करे खा लूंगा। पर ये नहीं समझते लोग कि वही पेट है, वही तुम हो। और फिर रमजान के बाद या रमजान में भी हम लोग सब तो काम पर आते ही हैं, तो अगर अपने आप को हम बीमार कर देते हैं या हम अपने आप के लिए कोई ना कोई डिस्कम्फर्ट पालते हैं, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अब रमजान फास्टिंग के बारे में, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये है ना, आपके सेल्यूलर सिस्टम को रिपेयर करता है, और ये आपके हेल्दी होने के लिए अल्लाह ताला ने एक महीना रखा है। 12 महीने में एक महीना आता है जब हम अपने आप को रेस्ट कर सकते हैं, सही तरीके से खा पी के हम अपने आप को, जितनी भी जो खराबियां हैं अपने जिस्म में, जितने भी जो सेल्स गंदे हो जाते हैं या बूढ़े हो जाते हैं या बीमार हो जाते हैं, उसको निकाल करने के लिए ये जो है सेल्यूलर ऑटोफेजी जो होता है, जिससे हमारे न्यूट्रिएंट्स जम के अपने लिए काम कर सके, ताकि हमारे बॉडी फिर से नहीं हो जाए। तो हमें ढंग से खाना है, ढंग से जीना, ना कि कुछ खाए, बहुत सोए, दिन भर जागे और कुछ भी खाए, वैसा नहीं करना है। तो रमजान फास्टिंग, जैसे सुमिता ने बताया था कि आपका ब्रेन हेल्थ, आपका एनर्जी लेवल, आप अगर अपने आप को वेट के लिए सही करना चाहते हैं, विसरल फैट हटाना चाहते हैं, लिवर की हेल्थ को ठीक करना चाहते हैं, या बहुत सारे मेरे जो टाइप 2 डायबिटिक्स है वो भी अपने आप को बहुत हेल्दी कर पाते हैं, अगर वो ढंग से खाना खाने सीखते हैं, समझते हैं, तब ये हम पॉसिबली कर पाएंगे। अब रमजान फास्टिंग में टाइम रेस्ट्रिक्शन भी है और ये ड्राई फास्ट है, तो जो लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग करी हुई है रमजान के पहले, तो उनके लिए ये इजी हो जाता है। पर ये बात समझना है कि रमजान फास्टिंग में हम 12 से 14 से 18 घंटे, मतलब हम जिस पार्ट में है अपने मुल्क में या वर्ल्ड वाइड में, कुछ कुछ कंट्रीज में 12 घंटे का भी फास्ट है, 18 घंटे का भी फास्ट है, और यहाँ पे पानी खाना सब बंद हो जाता है। तो हमें ये समझना है कि जब हम ये करते हैं तो मेटाबॉलिकली हमारा बॉडी जो है वो फैट्स को यूज करेगा, ना कि शुगर अलोन। जब फैट्स को इस्तेमाल करेगा तो आपके मसल्स भी एक्टिव हो जाएंगे, आपका जो पैनक्रियास, जो मेदोहार है, वो भी जो इंसुलिन बनाएगा वो बराबर से अपना काम कर पाएगा। तो हमें ये समझना है कि एक महीने का जो फास्ट है, अगर हम ढंग से करते, जैसे अल्लाह ने चाहा था, ढंग से खाएंगे, समझ के खाएंगे, दिन भर में बराबर एक्टिव रहेंगे, रात को आराम भी करेंगे, तब जाके ये जो है रमदान ड्राई फास्टिंग, जिसको हम कर सकते हैं रेस्टोरेंट ईटिंग और ऑल्सो इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉम्बिनेशन से हम अच्छे से कर सकते हैं। तो ये हम अभी जैसे मुझे हमेशा लोग पूछते हैं कि मैं अपने भूख को कैसे कंट्रोल करूं, या मैं कैसे अपने आप को अच्छे से खाना खिलाऊं पिलाऊं। तो हमेशा मैं ये समझाती हूँ कि सुहूर जो है, जो सहरी जो है, जो पहला खाना जो हम करते हैं सुबह में 4-5 के बीच में, वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट मील है, जिसे हम कहते हैं ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील। मैं समझाती हूँ सुहूर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील, बिकॉज तब आपकी बॉडी जो है ना दिन भर में अच्छे से काम कर पाएगी। अगर आपने उस टाइम पे, जैसे बहुत लोग कहते हैं मैं सिर्फ चाय पीती हूँ या मैं सिर्फ दूध पी लेता हूँ, मैं सिर्फ बिस्किट्स खा लेता हूँ, मैं कहती हूँ गलत। बिकॉज उस टाइम पे आपके बॉडी को चाहिए एक प्रॉपर बैलेंस्ड मील, जिसमें होना चाहिए एक कंप्लीट प्रोटीन, जिसमें होना चाहिए कार्ब्स, होना चाहिए हेल्दी फैट्स। अब लोग हमेशा पूछते हैं ये सब कार्ब्स, फैट, प्रोटीन क्या हुआ, तो मैं बताऊंगी जैसे आप नाश्ता करते हो ना, उस तरीके से आपका सुहूर भी वैसे ही बैलेंस होना चाहिए। तो अच्छा नाश्ता क्या हुआ, आपने अंडा खाया, अंडे में आपने सब्जियां डाल दी, जैसे मेरे बहुत सारे रेसिपीज है यूट्यूब पे, जैसे जहाँ मैंने बताया कि कैसे आप हरियाली अंडा या आप लेयर्ड ऑमलेट्स है, वो सारे रेसिपीज देखकर बना सकती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ अंडा कंप्लीट फूड है, पर उसमें विटामिन सी और फाइबर नहीं है। और अंडा इजी है पकाने में, आप रात में बना के भी रख सकते हो, तो बहुत मुश्किल नहीं है।
अगर आपने एक ऑमलेट बना के रखा है जिसमें टमाटर है, हरा धनिया है, पुदीना है, बेल पेपर्स है, शिमला मिर्च है, मेथी की भाजी है, पालक की भाजी है, आपने ये सब डाल के एक अच्छा मोटा ऑमलेट बना के रख दिया, तो आपके लिए जो सुहूर का जो 15 मिनट में मिलता है आप अच्छे से खा सकते हो। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्लास प्रोटीन। जो अंडा नहीं खाते उनको मैं कहती हूँ कि आप चना खाइए, मूंग खाइए, या खीमा भाजी खाइए, सिर्फ खीमा मत खाइए। आप खीमा इज प्रोटीन कंबाइन विद भाजी विच इज वेजिटेबल। साथ में आपको लेना चाहिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जो है आपकी रोटियां। अब रोटी हम बनाते हैं नॉट मैदे की, हम नान नहीं खाएंगे, हम ब्रेड जितना हो सके नहीं खाएंगे। अगर ब्रेड खाना होगा तो लगाएंगे उसके ऊपर चटनी, क्योंकि ब्रेड में फाइबर कम होता है, तो चटनी वाला ब्रेड थोड़ा हेल्दी हो जाता है। तो मैं कहूंगी चटनी में भी आप डाल सकते हो थोड़ा सा फ्लैक्स सीड्स का पाउडर, या नारियल की चटनी बना के भी डाल सकते हो। जो लोग रोटी बना के रख ले, मैं कहूंगी रोटी जो हमने आज हमें बनाई, हमने नेक्स्ट डे खाया, मतलब कि वो हो जाएगा आपका रेजिस्टेंट स्टार्च। हमने पहले से बना के रख ली रोटी को, वो रोटी में अगर हमने जैसे कि जो है अनप्रोसेस्ड, यानी कि जो फुल जो आपका है गेहूं का आटा, होल होल गेहूं का आटा, या बार्ली का आटा, या आपने ले लिया जवारी का आटा, बाजरी का आटा, नाचनी का आटा, या आपने मिक्स कर लिया विथ थोड़ा सा बेसन या मूंग का आटा, तो वो हो जाएगा एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स कार्ब, जो आपके लिए दिन भर स्लोली ग्लूकोज को रिलीज करेगा। तो अगर मैंने आपको समझा दिया इंपॉर्टेंट क्या हुआ, मैंने अच्छी रोटी ली, मैंने ऑमलेट लिया, फिर मैंने साथ में अगर 5-6 बादाम और ऑफकोर्स एक खजूर खाई, बिकॉज खजूर सुन्नत है, ये अल्लाह का फरमान है कि एक खजूर सूर में, एक खजूर आपका इफ्तार में, उस सबको मिलेंगे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आप अजवा खजूर ले सके तो बेहतर, बिकॉज अजवा खजूर में अल्लाह ताला का वादा है अलॉन्ग विद कलौंजी, जिसने खजूर और अजवा खजूर और कलौंजी खाया उसको हर बीमारी से अल्लाह ताला शिफा देंगे। तो अगर वादा है और अगर आपको एतबार है तो जरूर उसको आप इस्तेमाल करें। बिकॉज हेल्प मी, आपको भी इंशाल्लाह हेल्प हो जाएगी। यू कैन आस्क अल्लाह विद दुआ कि मेक मी फ्री ऑफ ऑल द डिजीजेस, बट आपको सही खाने का सीखना समझना है। डू नॉट स्किप द सुहूर। अगर आपने सुहूर स्किप किया तो दिन भर आपको चक्कर आएगा, आपकी एनर्जी लो हो जाएगी, आप रेस्ट करोगे, आप काम पे नहीं जा पाओगे। फिर जब आपका इफ्तार का टाइम आ जाएगा तो जिस दिन भर में अगर आप भूखे हो, सुहूर नहीं किया, तो फिर आपकी जो हंगर हॉर्मोन्स है वो भी बहुत ज्यादा स्पाइक हो जाएंगे। फिर आप बहुत जल्दबाजी से शरबत पियोगे, ठंडा खाओगे, तला हुआ खा लोगे, तो उससे क्या हो जाएगा, जो आपकी हॉर्मोन्स है, ग्रेलिन हार्मोन जो हंगर हार्मोन है, और जो लेप्टिन है जो सैटिस्फैक्टरी हार्मोन है, उसमें गड़बड़ी आ जाएगी। फिर क्या होता है, रात को ना हमारे बॉडी में आता है एक मेलाटोनिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन जो लगता है फॉर फॉर डाइजेशन ऑफ योर कार्ब्स, ये सब कुछ गड़बड़ डिस्टर्ब में हो जाएंगे। तो आपको ये याद रखना ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि सूर इंपॉर्टेंट है। सूर में बैलेंस होना चाहिए ऑफ गुड प्रोटीन्स। मैंने कहा अंडा खाएंगे, दाल खाएंगे, फिश खाएंगे, एक्सक्यूज मी, फाइबर के लिए ब्रिंग इन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स लेके आए, जैसे कि केला खा लिया, सी केला हैज गॉट शुगर प्लस कॉम्प्लेक्स कार्ब्स प्लस मैग्नीशियम पोटेशियम, तो ये अच्छा फ्रूट है। अगर आपने जैसे कि बादाम पिस्ता भी खाया, नॉट लाइक कटोरा भर के, एम जस्ट सेइंग 5 बादाम या 4 आधे अखरोट, ऐसा खाना है आपने। या आपने एक स्पून मूंगफली भी खा लिया, मूंगफली को हमेशा या तो सेकी भी खाइए या तो उबली भी खाइए, कच्ची मूंगफली नहीं खाते हैं। अब हम आते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन। जैसे मैंने कहा कि सुहूर में, यानी कि जो सहरी है, जो पहला आपका जो मील है रमजान का, सुबह का 4-5 बजे का, उस टाइम पे आप प्रोटीन्स को लेकर, जो मैंने कहा था अंडा, आप अंडा इज कंप्लीट प्रोटीन, उसमें आप डालेंगे सब्जियां, ठीक है। फिर आप मछली भी खा सकते हैं। आप लीन मीट, मतलब क्या कीमा है, चिकन का कीमा या मटन का कीमा, या जो जो भी बीफ वगैरह भी खाते हैं उनके लिए भी ठीक है। जिन लोगों को वो नहीं पसंद वो लेंगे दही, या ले ले सकते हैं चीज विथ एग, या पनीर विथ सम वेजिटेबल्स। आप ले सकते हैं दाल, मतलब मूंग हो गया या छोले चना हो गया। आपने अगर ये जैसे मैंने कहा तिल का लड्डू बना के रख लिया है, मूंगफली की चिक्की बना के ले ली, ये एक पीस खाने से आपको बहुत ज्यादा हेल्दी फैट्स, हेल्दी प्रोटीन्स और एनर्जी मिलेगी। जो लोग सोया खाते हैं तो सोया उसका खीमा बन सकता है, चंक्स बन सकता है, टोफू खा सकते हैं। आप जितना हो सके ना प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स हैं आपकी, दाल, सोया, नट्स। फिर मिल्क, तो मिल्क, चीज, कर्ड्स, कर्ड सबसे अच्छी चीज, बिकॉज कर्ड आपको मिल जाएगा प्रोबायोटिक्स। अगर हमने दही में मिला लिया सब्जियां, 1 चम्मच हमने डाल दिया फ्लैक्स सीड्स का पाउडर,
जैसे अगर यहाँ पे बता दूं कि फ्लैक्स सीड्स को हल्का सेक कर पाउडर बना के हर हफ्ते बना लो, 1 टीस्पून आप मिला सकते हो इंटू योर दही, बिकॉज वो हो जाएगा प्रीबायोटिक। ओके, फाइबर प्लस हेल्दी फैट्स प्लस आपको मिलेंगे मैग्नीशियम के बेनिफिट्स, और दिन भर आपका गट हेल्दी रहेगा और आपके बोन्स मसल्स भी एक्टिव रहेंगी। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सुहूर हो या इफ्तार, आपके दोनों ही मील्स में एक प्रोटीन, 2 प्रोटीन कर दो। दो मतलब कि अंडा और दही हो गया, या चना और आपने चीज कर लिया इन अ सैंडविच, चटनी लगा दी, या आपने कोई क्यूकम्बर टमाटोस काट के डाल दी, ऐसे तरीके से कर सकते हो। कुछ लोग तो प्रॉपर सब्जी खिचड़ी और कीमा भी खाते हैं, तो देख लो आपके लिए क्या सूटेबल है, क्या आसान है। शाम में बना के भी रख सकते हो ताकि आपको रात में उठकर बहुत तकलीफ ना हो। अब पानी के बारे में अक्सर पूछते हैं कि कितना पानी पिए, 2 गिलास 3 गिलास, मैं कहती हूँ ना, 8 से 10 से 12 गिलास। अब कैसे पिया जाए? हम कहते हैं कि 4 गिलास आप कर ले जब इफ्तार के लिए बैठते हो। 4 गिलास पानी ही नहीं होता है, आपका 1 गिलास पानी होगा। अगर आपसे हो सके तो आप जब सूर, जब खजूर से तोड़ते हो उसके बाद में आप 1 गिलास थोड़ा सा वार्म वाटर पीना, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा मेटाबॉलिकली। फिर आपका 1 गिलास हो सकता है नींबू, पुदीना, अदरक, साथ में खजूर को पीस लो या काला किशमिश पीस लो, उससे मिलेगा आपको इंस्टेंट एनर्जी में थोड़ा सा फाइबर मिल जाएगा। यदि आप को वक्त मिले तो प्लीज चेक माय यूट्यूब, वहां मैंने बताया हाउ टू मेक बहुत सारे सुहूर के ड्रिंक्स। जैसे मैं कहती हूँ कि फ्रूट ब्लेंड्स, बिकॉज इंसान उस टाइम पे भूखा भी होता है और प्यासा भी होता है, तो भूख प्यास दोनों को मिटाने के लिए आप ना ऑरेंज सीलरी हो गया, फिर एक पोमोग्रेनेट और मिंटी ड्रिंक है, या मिंटी क्यूब्स है, वो सब बना बना के भी आप ले सकते हो। तो मैं समझती हूँ कि अगर हम ऐसा वाला पानी पे, कुछ लोग ना कावा पीते हैं, वो भी ठीक बात है, कुछ लोग छाछ पीते हैं, वो भी ठीक बात है, मैं कहूंगी फ्रूट लस्सी बना के ले लो। बट डोंट जस्ट जंप टू मिल्की टीज एंड मिल्की कॉफीज, उससे आपका आप इफ्तार मत तोड़ना, वो बहुत ही डिस्टर्ब करेगा आपकी गट को। जो लोग नारियल पानी अफोर्ड कर सकते हैं, बिकॉज अभी तो आज की तारीख में मुंबई इज टचिंग 70-80 रुपया, तो आई डोंट थिंक वो सस्टेनेबल है। देख लो अगर आपसे वो अफोर्ड कर पाए तो आप वो ले सकते हैं। तो मैंने आपको इजी बता दिया। अगर हम ढंग से अपना इफ्तार करेंगे तो चक्कर नहीं आएगा, हेडेक्स नहीं होगा और आपको फटीग नहीं होगा। बस बहुत लोग क्या करते हैं, इफ्तार के बाद में सो जाते हैं, जैसे कि हमने कितना बड़ा उपकार कर लिया अल्लाह के ऊपर। ना, हाँ, अल्लाह आपके उपकार के लिए नहीं बैठे। अल्लाह देखता है कि बंदे में क्या कितनी हिम्मत है, कितना ढंग से वो मेरे प्यार में रोजे रखता है। अल्लाह ने कहा था कि मेरे लिए आप खाना छोड़ोगे, पीना छोड़ोगे और ढंग से खाओगे और दिन भर काम भी करोगे। तो हम तो काम तो करते हैं। तो आई विल टेल यू द राज, द सीक्रेट टू माई एनर्जी ड्यूरिंग Ramadan month. Okay, I've always worked. It's been 36 years of my work. Okay, so Mendru, I am into practice for the last 36 years, more than 3.5 decades. Yeah, I just completed my 60th year this December. So मैंने बहुत पेशेंस देखे हैं और बहुत लोगों को हेल्प भी करा है। अभी हमेशा मैं कहती हूँ कि जब ना लोग रोजा खोलते हैं हमसे, तो ठंडा ठंडा पानी, बर्फीला शरबत, रूह अफ़ज़ा या कलर्ड ड्रिंक्स जो आते हैं ऑरेंज येलो ग्रीन, ये ड्रिंक्स को आप लोग प्लीज बंद कर दो। बिकॉज एक तो ठंडा जो पीते हो उससे आपके स्टमक में गड़बड़ी आ जाएगी, ब्लोटिंग आ जाएगा, आपका डाइजेशन स्लो हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा और आपकी भूख भी कम हो जाएगी, तो आप ढंग से खाना नहीं खा पाओगे। हमेशा मैं बोलती हूँ कि जब आप रोजा खोले तो फल खाएं, खजूर के बाद थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा कि नींबू का पानी या मिंट वाला ड्रिंक पी लो, या कोई भी फ्रूट का स्लश बना के पी लो, कलिंगर का आपने क्रश करके ड्रिंक पी ला, उसमें शक्कर मत डालो। जो जो आपको वो शक्कर मिलेगी, जो फ्रूट शुगर्स मिलेंगे, वही काफी आपके लिए, आपको इजीली आपका रोजा तोड़ना, ताकि आपका जो बॉडी है उसको न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने का वक्त मिलेगा। फिर हम साथ साथ में अगर कुछ प्रोटीन्स खाते, जैसे कि आपने 2-3 चम्मच ये उबला हुआ चने का चाट खाया या मूंग दही का चाट बनाया विद खजूर इमली की चटनी, देखो डोंट पुट शुगर, पुट खजूर इमली। खजूर में फाइबर मिलेगा विद द कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, मैग्नीशियम मिलेगा। दैट्स अ गुड वे टू स्टार्ट योर मील। आपका जो आप इफ्तार करोगे 12, 14, 16 घंटे के बाद, तो अपने पेट पर थोड़ा सा आप आसान करें, रहम करें अपने आप पर। अल्लाह भी यही चाहते हैं कि बंदा उसके बाद में तुरंत मगरिब की नमाज पढ़ता है। अब जो 7 रकात मगरिब की नमाज में जो आपके 14 सिजदे लगेंगे, 14 सूर्य नमस्कार, उसमें आपकी बॉडी को एक्सरसाइज मिलेगा, आपका गट भी हेल्दी हो जाएगा। उसके बाद आप अच्छे से खाना खाइए। और मैं तो कहूंगी उसके बाद में अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो कोई भी ग्रीन टी, ब्लैक टी, कावा ड्रिंक। मैं तो कहती हूँ रोजमेरी का ब्रू पियो, स्पेयरमिंट का ब्रू पियो,
कामोमाइल इसमें कंबाइन कर सकते हो, उससे आपकी गट को ना बहुत ज्यादा कंफर्ट मिलेगा। ट्राई इट आउट गाइस, इट विल हेल्प यू। ठीक है। शुगरी कलर ड्रिंक से बिल्कुल बचें, बिकॉज आपका किडनी भी खराब हो जाएगा। बिकॉज इतना ज्यादा शुगर दोगे तो एक्स्ट्रा शुगर्स कन्वर्ट टू यूरिक एसिड से ब्लड प्रेशर, किडनी, हार्ट हेल्थ, किडनी हेल्थ, लिवर हेल्थ सब खराब होते हैं ना। जैसे हमने कहा कहा कि गट हेल्थ को सपोर्ट करें, तो मैंने कहा ना कि आप रोटी बना के रख लो, आज की रोटी कल खाएंगे, वो ब्रेड से कहीं ज्यादा हेल्दी है। वो बन जाएगा रेजिस्टेंस स्टार्च, घर का होगा तो उसमें केमिकल्स नहीं है, प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, राइट। तो रोटी, पराठा, थेपला, जिसे महाराष्ट्र में कहते हैं थेपला, व्हाट इज थेपला? आपने कोई भी पत्ते की भाजी को डाल दिया आटे के अंदर, जैसे मैंने बताया यूट्यूब हाउ टू मेक अमरन यानी कि चवली वाला थेपला विद नाचनी का आटा, राइट। नाचनी इज रिच इन मैग्नीशियम, कैल्शियम, फाइबर, तो व्हाई नॉट यूज इट। जवार में है फाइबर, जिसको ब्लड शुगर है उनके लिए जवार की रोटी बहुत अच्छी है। बाजरा की रोटी बहुत ही अच्छी है बिकॉज में है ओमेगा 3 अलॉन्ग विथ आयरन एंड फाइबर। तो मैं कहूंगी प्रोबायोटिक्स। अभी वहां पे हम क्या करेंगे, इफ्तार में भी, सुहूर में भी, अगर हो सके तो आप घर का बना दही, दही में डाल दो चिया व्हेन यू सेट द कर्ड्स, वो रेसिपी भी है हमारे यूट्यूब पे। आप दही सेटिंग में डाल सकते हो पीसा हुआ फ्लैक्स सीड, ऑलवेज रोस्ट द फ्लैक्स सीड एंड द सेसमिन के तिल का दाना, फिर आप उसको पाउडर बनाइए। रोस्टिंग से उसके जो भी होते हैं ना एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, सैपन्स वगैरह, वो डिस्टर्ब, वो टूट जाते हैं। तो हल्का रोस्टिंग करके पाउडर बना के आप अपने दही में मिला के, वैसे आप अपना रायता बना लो या चटनी बना लो, जिसे मैं कहती हूँ लहसुन। नाउ गार्लिक इज अ गुड प्रीबायोटिक, और कच्चा लहसुन लोग खाते नहीं है बिकॉज लहसुन की बदबू से नमाज में तकलीफ होती है। तो क्या करेंगे हम, लहसुन पुदीना विद दही पीस के वैसे खाएंगे, तो आपको मिल जाएगा प्रीबायोटिक्स प्लस प्रोबायोटिक्स। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको जितना हो सके प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताऊं, बिकॉज अगर आपने प्रैक्टिकली आइडिया समझी और सीखी तो आपका रमजान इंशाल्लाह बहुत अच्छा जाएगा। ना प्रीबायोटिक्स मतलब, प्रीबायोटिक्स आपने अगर ले लिया आपके अनप्रोसेस्ड होल व्हीट फ्लावर, बार्ली फ्लावर, ओट्स आपने लिया विद द ब्रांड होल ओट्स, आपने कच्ची प्याज खाई, नॉट द फ्राइड प्याज, आई एम सेइंग नॉट ब्रश्ता, आई एम सेइंग कच्चा प्याज, आप उसको डाल दो दही में, या तो यू पुट इट इनटू योर गुड़ इमली का चटनी, दैट्स अ वंडरफुल अ प्री प्रोबायोटिक कॉम्बिनेशन। या तो आप क्या करो ना, विनेगर के अंदर आप छोटी प्याज डाल के रख लो, पुट योर जिंजर पीसेस, पुट गार्लिक, सो दैट्स अ वंडरफुल pickle which you can have with your suhoor and iftar. It will help you with digestion. फिर डिहाइड्रेशन, जैसे किसी ने पूछा था मुझे कि डिहाइड्रेशन हो जाता है, मुझे मेरी यूरिन का कलर बहुत पीला हो जाता है, मेरे यूरिन में जलता है, यूरिन कम आती है, तो उससे मेरे गुर्दे पर क्या फर्क पड़ेगा। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर हमने बराबर से पानी पिया, हमने अगर बराबर से हमारे जो वाटर बेस्ड जो सूप्स है, ग्रीन टी है, ब्लैक टी है, फ्रूट जूसेस है, फ्रूट स्मूदीज है, छाछ है, ये सब अगर बराबर से लिया विथ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, उससे आपका फ्लूइड और लिटर बैलेंस बना रहेगा। हम्म तो अगर हमने ढंग से पानी पिया, जैसे मैंने कहा था ना, 4 2 2 2 एंड फिर 2, मतलब कि 10 ग्लास पानी पीना है, तो 4 एट इफ्तार, 2 एट मगरिब की नमाज के बाद, 2 ड्यूरिंग योर डिनर एंड 2 ड्यूरिंग योर सुहूर। सो बिगेस्ट मिस्टेक रमजान में क्या होती है कि लोगों को लगता है कि हम सिर्फ फ्राइड खाएंगे। अब फ्राइड फूड्स में सब मैदा, ब्रेड होता है, और किस तेल में वो बना है, जैसे कि अगर फ्लावर ऑयल है या पाम का ऑयल है, तो मैं कहती हूँ ये बहुत ही इन्फ्लेमेटरी ऑयल, जिनका इस्तेमाल ना करो, हो सके तो आप उसको शैलो फ्राई करें कम तेल में। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है या अवन है या एयर फ्रायर है, मैं तो कहूंगी मैरिनेट करो दही और अदरक लहसुन में, देन यू कीप योर चिकन या पनीर या फिश विद द वेजिटेबल्स ऑन स्लो कुकिंग इन योर रेगुलर iron your steel kadai, or that is the best way. Don't even fry. That is the best way to open your fast with a fruit during your meal time. Hmm? So पानी पीना है, don't ignore the water. Hmm? Do not have coffees, because जैसे उन्होंने बताया था कि बहुत चाय कॉफी पीने से बहुत ज्यादा पेशाब होगी, तो पानी कम होगा, और ज्यादा अगर पानी लीजिए होगा तो you will get dizziness. So you must make sure that आपका मील्स हमेशा कंट्रोल्ड है। तो फास्टिंग हमेशा मैं कहती हूँ कि जिनको तकलीफें होती है या जिनको समझ नहीं है, वो लोग अगर इंडिविजुअलाइज किसी क्वालिफाइड डाइटिशियन से मिलकर अपना प्लान बनवा ले, या मैंने जो आइडियाज बताई उनको हम थोड़ा सा समझ के इस्तेमाल करें, बिकॉज हमेशा देखना है कि मेरे घर में कौन सी आटा आता है, क्या मैं वो आटे में सब्जी मिला सकती हूँ, क्या मैं दही का इस्तेमाल ला सकती हूँ। फ्रेश दही जमा लो तो सस्ती भी और अच्छी भी है, फ्रेश भी है।
जो लोग medications खाते हैं, they must connect with the doctor and the dietitian and get those things sorted. So post Ramadan, क्या होता है कि बहुत लोग फटाक से अपना वजन बढ़ा लेते हैं, बिकॉज ये होता है कि ईद के दिन पर हम बहुत सारा बिरयानी, पूरी, शिरकुरमा खा लेते हैं विद कबाब्स एंड समोसास. ये गलत है फ्रेंड्स. हो सके तो आप अपने जो ब्रेकफास्ट जो होगा रमजान ईद पर, वहां पर भी कोई फल खाएंगे, कोई नट्स खाएंगे विद द खजूर. खजूर इज इम्पोर्टेंट. खजूर फर्स्ट. प्रोटीन्स एंड नट्स इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान रखना है कि प्रोटीन्स, वेजिटेबल्स, फाइबर्स, ये सबका इस्तेमाल अच्छे से होना चाहिए. डू नॉट ओवर इंडल्ज इन टू मच ऑफ कार्ब्स एंड फ्राइड फूड्स. ठीक है. हेल्दी ईटिंग में ये तो यही कहूंगी कि हम लोग ना माइंडफुली खाएं, अपना पानी बराबर पिए. गो बैक टू हैविंग 12 to 16 ग्लासेस ऑफ वाटर. ग्रेजुअली खाते खाते बहुत पानी मत पीजिए. फ्राइड शुगरी फूड को जितना हो सके आप कल से ही ट्राई करो. आप यू ट्राई टू हैव 6 घंटे का फास्ट करो, फ्रॉम ब्रेकफास्ट से अर्ली लंच एंड देन अर्ली डिनर. देन यू कैन ट्राई टू प्रैक्टिस अ फास्ट बिटवीन इवनिंग, शाम के 7 से सुबह के 7, 12 घंटे का फास्ट करके देखो. दिस कैन बी अ ड्राई फास्ट. आई टेल ऑल माई पेशेंट थोड़ा सा आप प्रेपिंग करें हाउ टू फास्ट फॉर रमदान. ट्राई विद द इवनिंग्स एंड देन गो इन द डे टाइम. स्टे एक्टिव, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस. तो अब जैसे मैंने बहुत सारा बता दिया ऑलरेडी कि हाउ यू कैन कीप अ बैलेंस. लाइक आई ऑलवेज से इजी रेसिपीज लाइक वेजिटेबल एग पुलाव हो गया. आपने मिलेट वाला आटा मिक्स किया, उसमें आपने चिकन या एग को विद वेजिटेबल्स मिला दिया, या एग एंड ओट्स का पैनकेक बना के स्टफ कर लिया. बहुत सारे आइडियाज है ऑन माई यूट्यूब. यू कैन जस्ट फॉलो दोस आइडियाज. एक्सरसाइज के बारे में पूछा गया तो मैं हमेशा कहूंगी कि यू कैन एक्सरसाइज बिफोर योर इफ्तार. हाँ. सो असर और मगरिब के बीच में अगर आपके पास टाइम हो तो ऑब्जर्व योर 20 रकात ऑफ कज़ाई उम्री. दिस इज द बेस्ट वे फॉर्म ऑफ योगा दैट यू कैन डू बिफोर यू ऑफर योर असर की नमाज. 20 रकात से दैट विल टेक अ गुड हाफ एन आवर. That is the best way where you will do zikr, you will do Allah Ta'ala's tarif, and you will complete your workouts. For those who want to walk, they can do the tasbiyat also. Practice, breathing. Okay, that will be very good, especially, your Brahmari, Kapalbhati, 5 minutes each, just before your iftar. Sit down quietly, don't run around too much. जिसको जिम करना है, मैं तो कहूंगी आपने अगर तरावी के बाद खाना खाने पहले खाना खा लो, फिर तरावी की नमाज, फिर यू कैन डू योर जिम. That's the best way. Drink your waters, stay well hydrated. Ramadan is a powerful month for physiological and spiritual practice. आप कुरान भी पढ़ें और आप सदका भी करें, आप चैरिटी भी करें, पर हर टाइम पे अपने आप को आप बचा के रखें. ना गलतियां करें, ना गीबतें करें, अच्छा खाना खाएं और अच्छी बातों का जिक्र करें. थैंक यू सो मच. स्प्लेंडिड. इट इज ए मैंने बहुत ही अच्छा एक डिस्कशन था. सभी को बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत इंफॉर्मेटिव मैसेज मिला, चाहे आपका एक्सरसाइज, चाहे क्या खाना है, डेट्स क्यों खाना है. एंड सबसे मैम अच्छा लगा, हम एवरीडे बोलते हैं माइंडफुल ईटिंग. तो अगर आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करोगे तो बिफोर रमादान से ही शुरू कर लो, तो आप you can end a very good month of Ramadan. So thank you so much, ma'am, once again. So we'll take questions. Questions से तो भर गया है. People are so excited. So पूरा Dr. I Mohsin is think we giving will give Dr. replies. Mohsin his time for the talk, and then meet for the questions हाँ, last. okay. So we Looking welcome forward. Dr. Mohsin. Mohsin sir का तो अभी था. I think you are not giving any presentation. Yeah, I'm not giving any अच्छा, presentation. Dr. Sanjay Gupta sir is there from Kolkata. He's a very senior doctor. Sir, you can unmute. You have raised your hand. Sir, you can unmute. Am I sir. audible? Yes, sir. Yes, Right sir. now? You are. Yes, sir. Good evening. Very nice talk. All doctors and dietitian has given, and this is my first meeting with you all, and very nice meeting. And this holy month, already we have discussed previously, and already we are discussing right now. And this is a month of repair and regrowth and resetter of our bioblast that is called mitochondria. Actually, this month, our deranged function of mitochondrial enzymes, which is a most important culprit
of metabolic dysfunction health, not only the diabetes, but also other diseases, even cancers. So through this novel meeting and this novel approach through 16.5 hours dry fasting, that is called suhoor to or sehri to iftar, will reset and repair our damaged cells, and in this way we can approach towards the iftar and dinner. But this is my suggestion. The iftar first half is very important, first meal, and it is full loaded with uncooked natural meal. In this meal, already Madam has said about the natural clean cut milk like milk based and fruits, veggies, soups, and avoidance of other ice loaded drinks. This Carbonated. is very good. This is very good first half of the iftar meal. But second half, which is loaded with inflammatory meal. First is anti-inflammatory, and second half of this is a pakoda and roasted and coal-based roasted tandoor items. It is not good for our health. So, Madam is promoting the anti-inflammatory diet, which should be balanced in nature, and we should promote 70% of our iftar meal with natural diet. That is purely anti-inflammatory, like fruits, veggies, and soups based and cereal based we can take. And after that, I think the post-iftar walking is very important, which will reset our digestion and gut True. health also. And this will perpetuate our good hormone, that is metabolic resetter hormone called melatonin. And this will augment our sleep. So after iftar, followed by walking or some kinds of upright postures is very good. And this will followed by the early sleep and early awake in 3:30 hours, 3:30 a.m. in morning. This will reset our whole metabolic derange hormones from insulin to growth hormone and counter regulatory hormones. In this way, this will reset our metabolic clock. So this is so nice month, and already Sumitra Dhar, which is I am very fond of her, and she told about the like a preconceptional approach, Ramadan approach. Ramadan. No, not just like we are just we counseling the patient who are going to pregnant. So our tight preconceptional metabolic regulation, just like this pre-Ramadan approach is very, very important. So this pre-Ramadan approach once in a week fasting is very, very important. This will reset just like nursery to class 1, class 2, class 3. And we should also aware of our fragile patient. Fragile means who are very sick and who are very elders and who are taking some nice novel kinds of medicines like GLPs, glyphosate. We should aware because there's some of the medicines which causing dehydration, like diuretics in सर heart एक failure. चीज हम पूछना चाहते हैं वन थिंग डॉक्टर संजय सर तो बहुत सीनियर डॉक्टर है आई नो हिम फॉर लॉन्ग टाइम आई लर्न मेनी थिंग डॉक्टर मोहसिन सर विल लीव नाउ तो बेटर जस्ट एक चीज डॉक्टर मोहसिन सर आप क्या एक्सपीरियंस करते हो आपके वहां पे हैदराबाद में जे ज्यादा सा आईबीडी आईबीएस ये सब पेशेंट बंगालीज को क्या ज्यादा आप तो यू गेट मेनी बंगालीज पेशेंट देयर सो जीआई इश्यूज इज वेरी वेरी कॉमन
there in Hyderabad. Even Sanjay sir will ये तो आपका क्या कहना है ये फास्टिंग GI से पहले issues are not very common in Hyderabad. Yes, in AIG we have because our 80% patients with GI issues come from Bengal. Yes, Very, very right. And very right. yes, So what is your take home for the GI patients, IBD, IBS? so IBS is very common. yeah, IBS is very common. Again, we recommend not to take a lot of stress, eat food on time, avoid fried foods, consume more of whole fruits and vegetables, and yes, keep yourself hydrated. एंड सर मेडिसिन रिजिम के बारे में बहुत लोग पूछ चुके हैं ऑलरेडी मुझे ये हाँ, स्पेशली आई एम स्टार्टिंग विद द डायबिटीज द डायबिटीज पेशेंट्स टाइप 2 तो ऑन इंसुलिन एंड ऑन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग सो प्री रमजान आपका क्या टेक होम होगा so pre-Ramzan, we recommend patients to come at least 3 to 4 weeks before Ramzan, get evaluated for a complete thorough checkup with HbA1c, what is the blood glycemic control, look for nephropathy or cardiovascular examination, any cardiovascular risk is there or not. If everything is fine, again, we divide patient into low risk, moderate risk, and high risk. Low risk patients can undergo fasting without any change in their regimens, but moderate risk, again, we need to see whether they can continue the fast daily or maybe on alternate days or with change of regimens. And high risk patients, it's strictly no for them to undertake any fasting. और सवाल है मेडिसिन का इफ पेशेंट इज ऑन मेटफॉर्मिन metformin can be continuous as earlier without any change in the regimen once daily or twice daily without any risk of hypoglycemia. Second, pioglitazone, again, it is safe enough. It can be taken either in the suhoor or iftar without any change in the dosage. ओके Then voglibos, that alpha glucosidase inhibitors, we usually tend to avoid because it again causes gastric issues like bloating and यस dyspepsia. So better to avoid. DPP4 inhibitors, again, they are safe. Coming to SGLT2 inhibitors, do not start just before Ramzan. If the patient is already on SGLT2 inhibitors for longer duration, you can shift the SGLT2 inhibitors to iftar time to prevent dehydration during the daytime. And now coming to the main drug, that is sulfonylureas, which causes very high risk of hypoglycemia. हाइपोग्लाइसीमिया So if the patient is stable and on once daily sulfonylurea, shift the drug to iftar and not in the sahari. If the patient is taking twice daily, then patient can take the full dose during the iftar and maybe half dose in the sahar. If despite that half dose also patient is going to hypoglycemia, you better stop sulfonylurea in the sahar time. And instead you can add up DPP4 inhibitors. Coming to insulin, if the patient is on premix insulin, suppose the patient is taking 24 units or 30 units in the morning and 10 or 15 units in the evening, you reverse the dosages. ओके So morning dose should be taken in the night time and night dose should be taken in the morning time. Despite that, again, if the patient is going into hypoglycemia, stop the premix insulin and shift to premix insulin in यस the night on short-acting insulin in the morning. Or else you can shift सर it व्हाट अबाउट द बेसल बेसल का तो कोई yeah, चेंज नहीं होगा completely. If your patient is on basal bolus, reduce the basal dose by around 50 to 50 by 15 to 20%. Bolus dose can be taken as usual in the night time. During Sahar time, again reduce the bolus dose by 30 to 50%, depending on the sugar levels. Now coming to one more question of blood pressure medication. Yes, blood pressure चैट बॉक्सेस medication. हाँ Yes, it can be taken if the disease is hypertension is stable, well maintained. Patient can take their medicines at regular times, but it is preferable to shift the patients on AC inhibitors or ARBs to in the evening time, right, rather than the morning. Diuretics, if the patients are taking, again, it should be taken in the iftar time and not in the sahar time. If the patients are having fluctuating blood pressures or frequently very high blood pressures, then better to avoid fasting. And regarding one हाँ question was like possible if anyone has acid reflux and gut disorder. Acid reflux, again, as we mentioned, as ma'am also mentioned, but not to consume very fatty foods or deep fried foods, and also avoid taking cool drinks or cold sharbats during the evening iftar time. Take normal foods and
If you are having long-term issues of reflux, then take PPIs in the seher. And during Ramzan times, even you can take it twice daily for a month. और थायराइड के बारे में आपका क्या कहना होगा? अगर हाइपोथायराइड मेडिसिन तो दे टेक इन द अर्ली हाइपोथायराइड का मेडिसिन है तो एज यूजुअल, अगर यूजुअली पीपल गेट अप ऑलमोस्ट 1 hour बिफोर फॉर कुकिंग। फीमेल्स का तो कोई इशू नहीं होना चाहिए बिकॉज दे गेट 4 अप। बजे के पहले उठ जाते हैं। हाँ, हाँ, तो दे कैन वंस दे गेट अप दे कैन टेक देयर थायराइड मेडिकेशन एंड डू देयर कुकिंग, एंड देन मे बी 1.5 hours गैप मेंटेन में दे कैन टेक इट। अदरवाइज दे कैन टेक इट बिफोर गोइंग टू बेड, बट इट शुड बी सीन के द डिनर शुड बी टेकन एटलीस्ट 3 hours बिफोर गोइंग टू बेड। तो थैंक यू, मुझे एक थैंक यू। क्वेश्चन है एक्सरसाइज ओके, रिलेटेड। मैं हाँ। बोलना चाह रही हूँ कि जो लोग हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज और कार्डियो जिम करते हैं, रमजान के टाइम पे क्या करना सही रहता है, या उसका जो इंटेंसिटी है उसको कम कर देना चाहिए? नहीं, इंटेंसिटी कम करना चाहिए एंड इट इज़ प्रिफरेबली जस्ट मॉडरेट इंटेंसिटी कार्डियक एक्सरसाइज कैन बी डन just before iftar, or maybe they should have a dinner, then go for that night tarawih prayers, and after coming back they can do some moderate intensity exercises, but they should not do any high intensity exercises. ओके ओके, थैंक यू सर। जुबेदा मैम, एक क्वेश्चन आया है। तो क्रिटिकली इल पेशेंट के लिए तो मना ही है, फिर भी कैंसर सर्वाइवल पेशेंट कैन बी ऑफ डिफरेंट स्टेजेस, बट चैट बॉक्स में आया है अगर कीमो चल रहा है, किसी का खुद का रिलेटिव है, तो शी वाज आस्किंग मी इन द मॉर्निंग आल्सो, तो उसको It क्या? is strictly no. स्ट्रिक्टली नो। ओके, so this is the thing we need to know. Also, मैम के पास एक क्वेश्चन है। मैम, already you have given the answer, though Zubeda ma'am, you have given this answer. So fruits, can it be taken immediately after iftar? You should actually. Fruits are complex carbs with the fiber, and they have your fruit sugars, right? So that's the best way to quench the thirst and also the hunger. But with that, you have some protein, like I mentioned about some kind of, say, chana or moong with some probiotic, like a curd, like a raita types. Or like when you have dahi vada is a very favorite recipe in Ramadan time, iftar times. So that can be done, or you can just put your, you can have your chicken with chutney and vegetables ka sandwich. That too is permissible. You can have, your egg, vegetable, cheese. You mix together proteins with vegetables and some carbs. Because some who are not able to make rotis, then I allow them such things. Or you have, your roti made in the morning by somebody in the house. Just wrap it up with some chicken, vegetables, chutney. Chutney is good thing, Avoid, I would say, too much of sauces and pickles, because again, that can aggravate the gastritis and ulcers and acidity, and the person feels then, at discomfort. So don't have Discomfort. very cold things, icy cold things, colored things. Have your normal, room temperature fruits. True, very Buttermilk true. and curds is a very good way, to start. And for some people, I advise that once you have your khajur, so this is a very good tip which works, practically. They can just chew a spoon of mix of zira. Zira is cumin seeds, and then you Cumin have seeds. soft, which is fennel seeds. And you take little raw poha and 1 or 2 black raisins. So combination of cumin, there is zira, soft, which is fennel, kacha poha, which is your raw poha, 4-5 grains, and 2-3 black kishmish. If you chew it well, that can actually, just arrest any kind of acidity and reflux. It really works. You can practice this at suhoor and iftar both times. एंड खजूर लेके बहुत क्वेश्चन मेरे को पूछते हैं मेनी पीपल विद डायबिटीज, बिकॉज देयर आर वैरायटी ऑफ डेट्स अवेलेबल इन द मार्केट। कौन So सा लेना है या डायबिटीज? as I said, ajwa khajur is the least in carbs. अजवा, Yeah, you have and dusra, it has got magical, divine powers. So one ajwa for those, one ajwa or half an ajwa with the kalonji seed ka powder, make it fresh weekly. Yeah, that can give you selenium, chromium, zinc, fatty acids, omega-3. So because I go into the content of these things when I plan my diet, so then, that has shown me great results. I don't say, binge on that softer khajur, those kimia and those are high sugar khajurs. Don't do those. You do ajwa if you can't afford. It is half an ajwa. That's it. There's sunnat, and it is good carbs. वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी नाइसली आंसर्ड। मोहसिन सर, एक और क्वेश्चन मेरे खुद के मैसेज में आया है। सो इंसुलिन का क्या? ऑलरेडी यू हैव गिवन द सेम आंसर, अगेन आई एम आस्किंग द क्वेश्चन। सो डोज
डोजेस क्या ऑल्सो चेंजेस होता है, या खाने के साथ साथ, या व्हाट वी शुड सेंड द पेशेंट टू द डाइटिशियन एंड एडजस्ट द कैलोरीज बेटर? जैसे जैसे मैम ने खुद ही बता दिया जे टू मच फ्राइड फूड शुड बी अवॉइडेड, अननेसेसरी इंक्रीजिंग द इंसुलिन डोज इज नॉट रिकमेंडेड। एंड और एक क्वेश्चन है जीडीएम एंड टाइप 1 के लिए, इफ 15-16 years type 1, can they do the fast or not? Type 1 diabetes, if the sugars are under control, they can fast. GDM, Do the again, fast. pregnancy, GDM, strictly no. And regarding insulin dose adjustment, diet control is the first thing, whether if you're fasting or not. Then regarding insulin dose adjustment, iftar ke time pe usually they tend to eat heavy, so the usual dose to be continued. Long acting, that is basal insulin, should be reduced by 15 to 20%. The bolus dose should be reduced by 30 to 50% in the suhoor time. Okay. And there's one question, effect of fasting on lipid profile and LDL particle size. Yes. So yes, it improves HDL cholesterol, that is a good cholesterol. It reduces LDL cholesterol and triglyceride, which is a bad cholesterol. And coming to particle size, yes, there's an increase in the shift in the LDL with a large size, which is non-atherogenic, and it is a not a cardiovascular risk factor. So it's like a beneficial effect because of the reduced insulin resistance and fat loss by prolonged fasting. But this effect is again very short-lived, because the moment you stop fasting, within you come to normal diet, again this things come back to the usual thing. But if you I think maintain it's your very diet post Ramzan, then you'll be able to maintain these benefits. what is important, Dr. Mohsen, that patients understand, no, the right kind of food combinations so that they can, come to a better state of health. And then post Ramadan, also practicing some healthy, inputs with regards to lifestyle, diet, what to eat, how to combine. So they shouldn't forget those things. They all feel that this is like a magic month. Kuch nahi hoga. Allah is going to be very kind, but Allah then tells you And discipline is important. they start gulping things, but that is wrong, because your gut is used to fasting for almost 12 to 14 hours, 16 hours. And when you suddenly start eating, you develop gastritis, vomiting, diarrhea, all the gastric issues. Plus, even post Ramzan, if you start eating heavy food, you'll start gaining weight immediately. So it is like you have to gradually introduce diet, and maybe initially 2-3 times in a day, or small frequent meals, and then maybe in a week or two you can come back to normal diet. And also I'm I'm just coming to asking about kalonji, Yeah, right? yeah. Kalonji. Light roasting, don't burn. Don't burn your Don't seeds. burn. Light roasting. And I always say make a weekly powder. Don't make a kilo and keep. Because you're going to start with 1/4 teaspoon and gradually you start from tonight. You start with like a pinch. Then you go on to, 1/4, 1/2. Go gradually. See, in our country, even in the COVID time, people just went all over with spices. Don't. Go very slow. Like I was even cinnamon powder, put 1/4 teaspoon along with your black tea and have it, and half an hour later after your iftar. It will be really wonderful. So try those little ways of how you can, calm down your hormones, and you can work on your appetite. You will work on the hunger hormone ghrelin and the satiety hormone leptin if you eat right. If you eat only sugar-based drinks and pakoras and sabudana vadas and batata vada with bread, that's all sad. You must look at how my proteins are going to be balanced with my vegetables and the complex carb. The complex carb can be even a sweet potato. It can just be a whole flour roti. There again, I always tell patients, please put flaxseed ka powder, put some besan ka atta, put some vegetables. Make that roti a potent, controller of your blood sugars, cholesterol. It gives sustained energy release. So your gut and your brain का जो है balance will be Gut well brain maintained. axis. And namaz is Especially compulsory. I would say you bring in more than 5 namazes, I would say, in Ramadan. Become extra pious. You excess. bring in 7 namaz, see, there's something called as Qazai Umri. So whatever you missed in the last year, if you can do that Qaza, 2 karke, that too builds on your exercise. I always tell patients, if you don't want to go to a gym, don't. Ghar mein hi kar lo, on your janamaz. That too is good exercise. Don't just sit on the chair. Try and start looking at flexibility. So look at your knees. Bend your knees. Go slow, but slowly build on your stamina, flexibility, and look at your muscle and bones getting better. And also, ma'am,
not, you can say every house, they keep the special recipes for iftar. There are now YouTube channels showing so many recipes for I am True, so iftar. much against this mix of cheese, bread, mayonnaise. Yes. Oh my God, true. Baba, Yeah, don't do Just those going actually, to things. say. you should eat those things on a regular basis and not avoid eating those things in the Ramzan. And we are doing Perfect, it in the perfect. opposite Haan, way. Ramadan Just cannot be because we are insurance. fasting, just because we are fasting whole day, we tend to eat more. And Yes, yes. earlier, yes, Overeating is people very, used to very lose weight. common. People Yes, used sir. to lose One weight. Now, post one Ramadan, part people. of the thing is not conscious eating anything, and over conscious people are too much there. Taking too much of supermarket से food उठा के लाते. I am having oats, I am having this, I am having that, and all are refined products. I am having digestive biscuits. Lot of digestive biscuits are very good. These are for diabetes patients. No, you have to read the nutrition labeling. Reading of the nutrition labeling is very, very important. So I used to show my all the patients that this is having palm oil, this is having 53% maida, Perfect, and this perfect, is not a perfect. sugar. This is not a sugar-free jam. It has having sugar. So people are very bad. And too much of having seeds and detox water. I don't know these words we have not heard about one decade. I think we need So to keep much on of it. educating patients about all these things. Educate. When we move away from packaged foods, जितना हो सके get your home foods, make it from seasonal, locally available foods. And vegetables are not supposed to be forgotten in Ramadan. There is no verse in the Oh, Quran which says that you not to have vegetables. Huh, Dr. Mohsin? What do all the patients say? कि हम सब्जी तो खाते ही नहीं है. That's why I said you bring in your chutney, you put your vegetables into your chicken, you put your patti ki bhaji into your keema, but bring in the sabzi. The sabzi has to come in. Yes. again, Dr. Mohsin will agree with me. Same, madam. The Bengali patients, साग, स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल से बहुत डरते हैं. वेजिटेबल्स खाएंगे तो गैस हो जाएगा. कुछ भी खाते हैं तो बोलते हैं गैस हो जाता है. तो दिस इज ए प्रॉब्लम with us. So proper education is important, proper hydration is important, everything is important. Sumitra, what about the Way of rebound weight? cooking is Already important. cooking, even dietitians have to teach the cooking techniques also, how to cook, how to be. And ma'am has about told about us about the retrogradation, keeping rice and roti over the night in the refrigerator and then have it, so it can reduce the glycemic index of the food. Meal sequencing is very important, how you are eating, the planning the meal. So Shumitra, I will come to Ishani. One or two questions will take and wind up the session. So we are running out of time. Shumitra, what about the rebound weight you are telling, and especially the insulin resistance or insulin sensitivity that is post Ramadan? If you can just tell in few In lines. case of post Ramadan, what is happening that people, after completing the Ramadan period fast, and they feel that they can have everything, because in Ramadan there is some kind of restriction कि जब दोपहर को खाने का टाइम है तब हम लोग फास्ट करते थे. तो जब भी रमजान खत्म हुआ तो क्या होता है, तो सारा टाइप का खाना फिर से बहुत ज्यादा अमाउंट में वो लोग लेते रहते हैं. वो कार्ब्स हो, वो फैट्स हो, कोई भी खाना हो, तो फ्राइड फूड एंड ऑल सब कुछ वो स्टार्ट कर देते हैं. फिर वो सिस्टम में मेंटेन नहीं करते तो हमारा गट फिर से कंफ्यूज होता है, फिर से वो कंफ्यूज हो जाता है. तो इंसुलिन सेंसिटिविटी फिर से कम हो जाता है, फिर से स्ट्रेस लेवल और बढ़ जाता है, कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, हंगर हार्मोन और बढ़ जाता है. तो इससे जो बेनिफिट्स आया था रमजान में, जो इम्यून इफेक्ट हुआ था, वो सारा चीज फिर से ऑल्टर्ड होने लगता है. और एडिपोसिटी फिर बढ़ जाता है, गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम बढ़ता है, फ्लैचुलेंस बढ़ जाता है, क्योंकि उतना खाना पूरा सिस्टम, हमारा जो सर्केडियन क्लॉक है ना, वो पूरा डिसरप्ट हो जाता है इस टाइम में. तो फिर से वो वेट गेन, फैट एक्यूमुलेशन, गैस एसिडिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस फिर और ज्यादा बढ़ जाता है. तो जो सारा बेनिफिट्स था वो बेनिफिट्स फिर काम नहीं आते. No, तो one फिर more से thing अगर of हम एक शेड्यूल वाइज ले. यस सर. वन मोर थिंग फॉर वेट गेन इज, जिस हम जब डाइटिंग स्टार्ट करते हैं, रमज़ान स्टार्ट करते हैं, इनिशियली व्हाट हैपेंस, वी लूज फैट. सो वेट लॉस होता है. वन इज इनिशियली इट इज़ बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, लेटर ऑन इट इज़ बिकॉज ऑफ फैट लॉस. तो बॉडी क्या करता है, बॉडी गेट यूज टू इट कि हाँ मामा मुझे एनर्जी कैलोरीज कम मिल रहा है. सो दे इनिश व्हाट हैपेंस के बॉडी का मेटाबॉलिज्म बिकम स्लो. इट स्लोज डाउन, यस. मेटाबॉलिज्म स्लोज डाउन. सो जितना कैलोरी मिल रहा है उसके हिसाब से मेटाबॉलिज्म होता है, बीएमआर कम्स डाउन. So once after Ramadan we started eating in, we start pouring in the normal calories also, but our basal metabolic rate is tuned to the Ramzan time. That is the reason post Ramzan within 1 to 2 weeks we start regaining the weight.
Very तो true, very रमजान true. में जो ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होता है, जो लिपिड ब्रेकडाउन होता है, इंसुलिन भी कम होता है, ग्लूकागॉन बढ़ जाता है, तो ये सारा रमजान पीरियड में तो होता है। तो अभी पोस्ट रमजान में भी अगर हम नॉर्मल डाइट आहिस्ता आहिस्ता शुरू नहीं करेंगे और फिर से एक साथ पूरा शुरू कर देंगे, तो कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ेगा और जो बेनिफिट्स है वो भी आप लोगों को नहीं मिलेगा, ये एडिक्वेसी और क्वेश्चन था चैट बॉक्स में. दिस वाज अ क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स. ईशानी, आपका क्वेश्चन पूछो. आई एम जस्ट trying to wind up the session. It is really very good session. If we continue, there will be many questions coming. Okay, Aishani, आपका क्वेश्चन पूछो. आफ्टर रमजान कैसे नॉर्मल डाइट और नॉर्मल लाइफस्टाइल पे आते हैं, कैसे मैनेज करता है ये थोड़ा जुबेदा मैम, आप अगर बोलते हैं Yeah, I think I will want to answer this question. This is for everybody, not only Aishani. You know, people always feel that जैसे आज ईद हो गई तो अभी मैं सारा जो मैं रमजान में खाता था वैसा ही हेवी खाना अभी भी खाऊंगा. जैसे मैंने समझाया था कि हम जैसे प्री रमजान बॉडी को प्रिपेयर करते हैं, पोस्ट रमजान भी बॉडी को वैसे ही आप स्लोली खाना खिलाइए. और आपका फोकस होना चाहिए ऑन फ्रेशली कट फ्रूट्स, नो जूसेस. You will have your one khajur. You will bring in 5 बादाम. You will bring in your chana, chole, rajma, anda, dahi. Bring in little dahi, 100 gram dahi. You can also start, putting little जीरा, अजवाइन in your post meal like a मुखवास. आपका हाजमा ठीक हो जाएगा. It will improve your digestion. So you won't have gas, bloating. And I would say आपका लंच आप लाइट करो, डिनर को आप जल्दी कर दो. बॉडी को स्लोली आप ना वैसे खाने पे लेकर आइए. This system I've begun for patients already from February. First Feb से I told patients कि till your Ramadan starts, you start doing this. Make it a point to have an early dinner, a good dinner. A good dinner is what? आपके 4 components होने चाहिए. Raw vegetable, cooked vegetable, one well cooked protein, and one complex carb, which is a roti or a rice. अगर राइस ही खाना है तो make it like a खिचड़ी or make it like a veggie pulao. You bring in जो seasonal है. You bring in मटर, your French beans, your carrots. Eat your raw carrots. Don't combine gajar beet together. Both are high carb, high glycemic index vegetables. थोड़ा ये सब ध्यान रखो. सो डायबिटिक हो या नॉन डायबिटिक हो, आई थिंक इंडिया में every third person is pre-diabetic or इंसुलिन diabetic. रेजिस्टेंट. So we need to be very careful. हमारे प्रोटीन्स की एडिक्वेसी, हमारे फाइबर का होना. हम खाते खाते बात नहीं करेंगे. डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड. डोंट वॉच टीवी. Focus on your food. Chew your food well. So start building on those good food practices as well. As I always say, if you can sit down, cross-legged. Yeah, Halasana pose. Yeah, what is a Padmasana pose? Sit quietly, knee, because that again will help you with digestion. Don't eat quickly. Don't talk too much. Eat quietly. Say your prayers. Wash your hands well. Little things you start from now, so that when you are in Ramadan mood and post Ramadan also, you should maintain those same habits. What do I call them? But ethics of eating, ethics of cooking and planning your meals. Ethics of cooking, ethics of eating. थैंक Yes. यू मैम. Radhika, what is your question? यस सर. जैसे कि प्री रमजान हम लोग 4 to 3 वीक्स पहले से करेंगे, तो वैसे पोस्ट रमजान हम लोग कितने दिन तक करेंगे डाइट फॉलो, और कब से नॉर्मल धीरे डाइट धीरे कंटिन्यू कर धीरे सकते धीरे नॉर्मल मतलब लाइफ में कैसे, जुबेदा मैम? I तो बोलना always तो say that स्लोली you take a week's स्लोली. time. Take a week's time. Go slow. See how your body. Look at your bowel movements, your urine. Have your waters. Make sure you're starting on your proper 2 liters more of water. अगर पानी वैसे ही नहीं पी सको तो add some lime, add some जीरा soak कर दो. Put some pudina, ginger. That you can do post your खाना. Little half cup पानी में. That too is a wonderful digestive agent. Start with exercises. I always say खाना खाने के बाद में 10 मिनट का walk कर लो. That's the best way to not let the sugar spike, and you will not feel as sleepy as well. Because जब हम ज़्यादा खाना खाते हैं with lot of rice, in India में, if I were to show you a plate, a plate, make into 4 parts, right? Make into 4 parts. You make sure that one part is your raw vegetable. If I say this plate, okay, you will have your raw vegetable, which is your 200 grams, okay? Then you may bring in a soup of vegetables. Put the vegetables in, okay? You have your cooked vegetable. You can have a roti. The roti can be 6 inches. Yeah, make the rotis again with more vegetables. I always say bring in the vegetables wherever, however possible, because today India lacks protein and fiber
to a great extent. A lot of our health issues like diabetes or constipation, acidity, high cholesterol are all linked to lack of good protein combination and lack of fiber. And we don't drink enough water. So we should be very careful on those fronts. I hope I'm able to answer your Radhika, is questions. it clear for you? I think it is nicely explained by ma'am. Very Yes, sir. Yes, sir. Thank you, ma'am. Thank you. practically explained. So there are few left questions, but we have to wind up the session. And all the most of the questions are being answered. Again, a questions on PCOS. So same thing have to follow. PCOS is also because of insulin resistance. One more question: how underweight person? This is the last question I'm taking. Any Can I underweight answer, person? Swami Abu? How? Yeah, benefited from I fasting think for an during that. underweight person, very easy. They should learn to combine your high cal, fruits. Like you can bring in 3 days, not just one. Like in the Quran, you say, 1 or 3 or 5. So an underweight person, if he's otherwise healthy, can go up to even 5 khajurs. Blend kar lo with your milk, with your banana. You bring in your almond powder, pista powder, roasted peanut ka powder, not salted. So these are ways of building on your calorie density और आपका bulky meal नहीं होगा. See, for a person who has to lose weight, I say bring in salads, vegetables, all those things, soups. But for a underweight person, I say, you make your meals more condensed with regards to energy and macronutrients. Sugar mat daliye, you bring in fruits, you bring in dates. Is that okay? You can actually Yes. apply some, good, probably you can apply your olive oil, till oil, mustard oil onto your roti. Roti. Jitna ho sake, try and reduce the intake of palm oil and sunflower oils and your vegetable Omega ghee. 6 inflammatory and oil. deep frying se bacho jitna ho sake. Make it like kam tel mein, jitna ho sake. Oil consideration is very important to teach. What are the oils you have to do? So one question is wheat. I can also answer this. Intolerant to wheat products. So there are many millets that are gluten free. You can have different jowar, bajra, and ragi, and that are gluten free. If you do not like to take rice, so apart from wheat, there are many other millets. Even oats can be also taken. One question again to Zubeda ma'am, because it is pertinent to you. Yasmin Mehtab, she has asked, I am allergic to egg and can't have non-veg at Shahri. And as I didn't like to, then what kind of protein should I take at Shahri? Wonderful. What you could do is either you can bring in milk or curds or cheese and paneer, and you can combine that with some sprout. If you can't sprout, now just soak and boil. If you feel that that is becoming gassy for you, one practical tip, you soak your whole pulses in water with a spoon of vinegar. Discard that water. When you're boiling your pulses in the evening, you put a pinch of asafoetida, ginger, black pepper, and you boil your pulses. Then you can either mash it up, stuff it into your roti, you can add it to your curds, make it like a raita, and that combination protein can be as good as your egg protein. There are people who also like to have minced meat. So I always say have your keema with some vegetable, like make a palak or a methi or a shepu bhaji or a coriander wala keema or paneer or tofu that can Paneer. also be mixed Yes. with vegetables. Yeah. That is Paneer is it. very good. Paneer, you can have a good protein if you cannot tolerate egg. Always So I am paneer is not winding. good, Soumyandu. Always paneer Not no. good. Always Please not bring good. in, yeah. There is Fatty good. liver is a You have big to risk, select. huh? Yeah. So there are different kinds of paneer also. So if you can choose the low fat one. Lactation में क्या someone has Fatima has asked, can fasting be done during lactation? I think no. During lactation, it is not permissible when the mother is in the lactation phase. Ma'am? No, I think there are people who have taken guidance for lactation. And, the baby also learns to take a lot of milk, between iftar and suhoor. And if she Okay. eats well with the right kind of, matching That of is the a good message. macronutrients and the macronutrients, because see, there are people who don't want to leave the Ramadan fast. See, pregnancy, if you have a GDM or a eclampsia case, then you will be very careful. You will not advise them. But for many people now who have learned to eat right, and we balance with their blood reports, the lab reports, and we teach them how to manage little exercises, eat writing combinations. So they are happily doing their Ramadan fasting in pregnancy and lactation. But good nutrition combinations are very important.
Small meals. You can't have big meals, but you can have even 4 small meals from iftar to suhoor. It's possible. And for Shumitra, if you can just say the same thing as repeatedly we have said, this is my last question. Three questions came to the chat box: how to manage during PCOS. Many girls nowadays and young generations having PCOS. So for them, what are the last message you want to give, Shumitra? You are on mute. The diet during Ramadan with PCOS. Am I audible? Yes, yes. During तो रमादान में जो पीसीओएस पेशेंट्स है तो वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंसी है उसके बॉडी में, तो अगर हम उनके डाइट में भी वही चीजें मतलब प्रोटीन बढ़ाए, वो कॉम्प्लेक्स कार्ब रखे, फाइबर इंक्लूड करे, जैसे सब्जी हो गया ज्यादा, जो मैम बार बार बोल रही है कि सब्जी ज्यादा रखिए, फ्रूट ज्यादा रखिए, आप खजूर से स्टार्ट कीजिए, तो ये सारा बहुत अच्छा काम करेगा। सीड आप साइकिलिंग काम सिनेमन में रख आएगा। सकते हैं, सीड साइकिल में आप सिनेमन रख सकते हैं, वो अपना इंसुलिन सेंसिटिविटी को और बढ़ाएगा, तो ये सारा चीजें मेंटेन करेंगे। प्रोबायोटिक्स रख सकते हैं, कर्ड रख सकते हैं, तो ये सारा चीज, प्रोटीन ज्यादा लिया करिए, तो ये सारा चीज उनको एक एंटी लीन इंफ्लामेटरी प्रोटीन। इफेक्ट। हाँ, लेकिन आप वो जैसे वो सीरियल पैकेज थिंग हो गया, या जो जो ऑयल मैम बोल रहे रिफाइंड थे, सीरियल। रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड सीरियल, तो ये सारा चीज बंद करना पड़ेगा उस टाइम को। आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं जो एक एंटी इंफ्लामेटरी है, वो सारा चीज आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, तो उससे इन्फ्लामेशन भी कम होगा और उससे इंसुलिन सेंसिटिविटी और बढ़ेगा, और उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी उनके बॉडी में कम होगा। Okay, thank you. Now I want to give a vote of thanks. First, I want to give all my speakers and Zubeda ma'am. When I called her, she has expressed her thanks and she responded so positively. And always I used to follow her in the social media. Always in this age also, ma'am. If you don't tell your age today, you have revealed your age. Otherwise, we thought it's 58 or 59 rather. So, ma'am is so energetic, still giving many educational tips, reels, everything we are doing. I know Mohsin Sal also in his busy schedule has given a very good insight, and even our Shumitra, you have given us in a crisp way. You have given a very good message to all the people who are, because Ramadan is coming. I think it is 18 or 19 of this month only. So, thank you all on behalf of IFPN Community Core Group Nutrition. I thank all the participants, speakers, IPN India, IPN Kolkata chapter. So thank you so much. And without any delay, I hand over to Fatma. Thank you so much for all the speaker, and thank you, Shamandu sir, for moderating the session so very nicely. And I'm very grateful to Zubeda ma'am, Sumitra ma'am, and Dr. Mohsin, because he without any delay he is answering all the questions while the other speaker were giving the session their speaks. So just before we close the session, the main body which I am belong to, the organization, the TSSF, where we able to give this session a successful ending. So I want to give a glimpse of this NGO where just a second. So this organization, along with the other bodies, IPN, Community Nutrition, Cognizant Nutrition, the Sri Sakti Foundation. It is a non-profitable organization in Kolkata. So this is our leader, Abdul Rahim sir. By profession, he is a chartered accountant, a management consultant, and collaborate with government and international development agencies on various public sector development projects. And as a dynamic public speaker and trainer, he is a visionary founder of the Sri Sakti Foundation TSSF and the driving force behind several of its innovative initiatives. So he is like a root in this organization, guiding many youngsters like me to be part of this organization and do the noble works for the society and for ourselves too. So it's like a proverb: better to light one small candle than to curse the darkness. कि अगर हम अंधेरे को ना कोसे, एक अगर किसी के लाइफ में एक मोमबत्ती की तरह काम करे, उसकी उजाला कर दे, तो बहुत ज्यादा मायने रखता है किसी की लाइफ में।
So it's registered public charitable trust. It started on 1st June 2012, and the trust is named after the great Sufi saint Hazrat Sakti is reported to have said, "Be like the sun which shades its lights on all, be like the earth which sustains the burdens of all, be like the water which enlivens hearts of all." So under this TSSF organization, there is a few chapters: Calcutta East, South, and Cares, which I am belonging from Kolkata Cares. This is the reason of the behind the breaking this making this region, because हम लोग सोचते हैं कि अरे इतना दूर है कैसे करेंगे। जब आप जहाँ पर हो वहीं पे चेंज लाओ। अगर आप ईस्ट में बिलोंग करते हो, कहीं पे भी रहते हो, अपने उस जगह पे आप थोड़ा सा चेंजेस, किसी को आप फायदा पहुंचा सके, तो वही बहुत ज्यादा चेंज लाएगा। सो हर एक चैप्टर में हमारा जो है एक प्रेसिडेंट होते हैं, एक वाइस प्रेसिडेंट जो सोशल एक्टिविटीज करते हैं, एक वाइस प्रेसिडेंट जो सेल्फ एक्टिविटीज करते हैं, एक ट्रेजरर, सेक्रेटरी, जो हर एक बॉडीज में होते हैं। आईपीएन, आई बिलीव एवरी बॉडी हैव कंसिस्ट ऑफ दिस पोजीशन टू होल्ड द एक्टिविटीज एंड टू रन द चैप्टर more effectively. So in this, what we do in our organization, like many social activities, like many self projects also, and calendar events, and as well as annual events as well. Old age home visit, orphanage visit, yearly blood donation, health camps, and monthly breakfast, monthly or weekly event. So about the TKC, this chapter is the first chapter started when this organization is started, established in 2018 with a commitment to serving communities in the central areas of Kolkata, including Entally, Park Circus, and Central Avenue. While the chapter's focus areas are centralized membership and volunteer participation individual across Kolkata, eliminating concern about distances. So this is the inauguration day when it first started. It is 15th April 2018. Here are a few glimpses. You can see the activities we have done. It is around 2024-25 year. Orphanage visit, old age home visit, health camps, plantation. So in whatever way we can give benefit to to our society, we are trying our level best. Some self projects, not only socially we are helping, we are like हम लोग अपने खुद में कैसे डेवलपमेंट ला सकते हैं। ये जो रमज़ान मेरा मोटिव था कि मैं अपने आसपास के लोगों को कैसे हेल्थ कॉन्शियस कर सकूं। रमज़ान है, हम लोग फास्ट करते हैं, सो ये रमज़ान भी एक लाइक ऑफ सेल्फ जो कि सोशल भी बन गया, कि हम लोग सिर्फ खुद पे नहीं इम्प्रूवमेंट लाएंगे, हमारे आसपास के लोग, हमारी सोसाइटी, मुस्लिम कम्युनिटी, इवन द नॉन मुस्लिम, लाइक हमारे यहाँ बहुत सारे डाइटिशियंस, प्रैक्टिसिंग डाइटिशियन ज्वाइन किए इस सेशन में, इस फोरम में, सो दे कैन गाइड देयर मुस्लिम पेशेंट कि कैसे आप कर सकते हैं। एंड आई रियली थैंकफुल जुबेदा मैम टू हाईलाइट सो मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स ड्यूरिंग हर टॉक. So these are some few annual projects: blanket distribution in winter, blood donation, Ramzan kit distribution to the underprivileged families, रेजिंग फंड फॉर द लाइक अगर कोई किसी के पास अर्निंग का कोई जरिया नहीं है, सो थ्रू एनी वे वी कैन लाइक एक रिक्शा हम लोग ने बाय करके उन्हें दे दिया, सो दैट ही कैन स्टार्ट अर्निंग, इवन ही कैन ऑल्सो पे अस बैक वंस ही स्टार्ट एस्टैब्लिश हिज बिगनिंग हिज बिजनेस. देन फंड रेजर फॉर एनी मेडिकल पर्सन, किसी को अगर पैसे की ज़रूरत होती है, कोई किसी को अगर कोई डिजीज है, कोई पैसा फंड नहीं हो रहा है, तो फ्रॉम दैट ऑफ वे पर्सपेक्टिव वी ऑल्सो हेल्प देम ब्रेकफास्ट डिस्ट्रीब्यूशन and annual sports. As we are dietitian, not eating the diet is as well as exercise is also important. So we are establishing a business setup for a widow, like किसी का, like I earlier said कि हम लोग ने business setup करके दिया, now she is running her own business very wonderfully. So like these many projects we have done earlier also, and looking forward to do also. So there is another very impactful session just last year only we have done, bridging generation. We visit orphanage gathering, and the physical activity there, the happiness in their faces when we went there is like a priceless.
So with this, I want to end my talk as well and about the organization. Thank you for your patient listening. And this is the details of the organization. If anyone wants to know about it, if anyone need help and any अगर आपको लगता है कि हाँ इन किसी को ज़रूरत है, they can approach us. So you can share the details about the organization as well. And even if anyone wants to be a part of this organization, they can join as well. Thank you so much. Thank you, Fatma. Nice knowing about the organization also, and thanks to you, because of you, you have taken the initiative, and we have, I think we have done this program successfully with the help of our speaker. So thank you, everyone, and good night. With this, I just want to say a small dua before ending. Sure. Allahumma barik lana fi Shaban wa baligna Ramzan, which means, oh Allah, bless us in Shaban. Just before Ramzan, there is a month Shaban, and allow us to reach Ramzan in good health and strong youth, in strong faith. Thank you. Good night. Thank you so much.